गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, नॉट सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक यानी फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल अगर हमको दिया है तो स्टूडेंट्स आपको पॉलिनोमियल देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप लोग धीरे धीरे करते चले आ रहे हैं, तो exactly in same method we will handle the fourth degree polynomial. So let us see students how to solve fourth degree polynomial related question. If you are to find the zeros of fourth degree polynomial, what we will do? So students, procedure methods are almost same. You have to be careful at some steps. So find other zeros of polynomial. This is a polynomial students, you can see this is a fourth degree polynomial, and for your convenience, this is already it is in standard form. Polynomial already it is in standard form. So easily you can divide it, and its two zeros are square root 2 and minus root 2. Students, two zeros are given. So students, this is a fourth degree polynomial, and fourth degree polynomial has how many zeros? Fourth degree polynomial will have 4 zeros. If we have 4 zeros and only 2 zeros are given, it means we have to find other 2 zeros. Fourth degree polynomial has 4 zeros and we are given two zeros, so we have to find the remaining 2 zeros. So students, what we will do, we will follow the same procedure as followed in previous video. So in last video you have seen about the students, in last video you have seen about the, we have studied about the cubic polynomial, third degree polynomial. In various questions, almost 5 to 6 questions are practiced by us on cubic polynomial. So let us see this. Given polynomial is px equals to 2x to the power 4 plus 7x cube minus 19x minus 19x square minus 14x and plus 30. So students, this is our given polynomial. So it has 4 zeros. So let us take, let its 4 zeros are, students, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी हिंट दिया था, if you have 4 zeros you will take like that, alpha, beta, gamma and one new letter, this is known as delta. So don't even worry about symbols, alpha, beta, gamma and delta. So if these are zeros students, so what we will do, we will write polynomial. Therefore polynomial can be written as, if these are zeros of this polynomial px, it means alpha, beta, gamma and delta are polynomial. Means x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and x minus delta. These are the factors of quadratic polynomial. Student, 2 zeros are given. 2 zeros are given, which means suppose alpha and beta is given. Alpha and beta is given. We can write here alpha equals to root 2 and beta equals to minus root 2. Suppose 2 zeros are given. Students, you can also write that gamma and delta are given. So but we will taking alpha and beta are given. तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 zeros given है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. दिस विल क्वाइट सिंप्लीफाई योर पॉलिनोमियल. एंड इस ये दोनों जीरो स्टूडेंट्स अननोन है. गामा और डेल्टा क्या है स्टूडेंट्स, अननोन है. गामा एंड डेल्टा आर टोटली अननोन टू अस. तो इसकी जगह एक नया पॉलिनोमियल ले लेते हैं, fx. स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स रूट टू माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी रूट 2 minus root 2 and into fx. So students, you can see these two are cancel out and root 2 is 2. दो बार मल्टीप्लाई करेंगे रूट 4 हो जाएगा. वैल्यू ऑफ रूट 4 is 2, बट स्टूडेंट्स नेगेटिव रहेगा.
So this becomes x square minus 2 and into fx. fx क्या है स्टूडेंट्स? fx is another polynomial which has two zeros, gamma and delta. मतलब fx से ही हमारे दो नए जीरो निकलेंगे। तो पहला काम है हमारा fx को निकालना और fx निकालने के बाद उससे जीरो निकालना। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के हमेशा आते हैं एग्जाम्स में। और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह का। सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड fx। fx इक्वल्स टू px डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स फिर से आप वहीं पर आ चुके हैं, कहां पर? उस मोड पर हम लोग आ चुके हैं जिस मोड पर हमें करना होता है डिवाइड, एंड वी हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स fx कैसे निकलेगा? अगर हम px को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा fx निकल आएगा। अगर fx निकल आएगा तो हमारे बाकी दो जीरो निकल आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए हम लोग परफॉर्म करते हैं लॉन्ग डिवीजन। x square minus 2 and this will divide what px means polynomial स्टूडेंट्स। मैंने px की वैल्यू नहीं लिखी है, px यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, px हम लोग यहाँ से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो 2x to the power 4 plus 7x cube minus 19x square minus 14x and plus 30। Students, for our convenience we will write quotient at this place. So what will be the quotient in फर्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स? आप सोच के बताइए। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से बता देंगे। तो व्हाट विल बी द क्वोशिएंट इन फर्स्ट स्टेप? 2x to the power 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दो पावर कैंसिल और ये 2 तो 2x to the power 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वोशिएंट इज 2x to the power 2। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का मैं बोलूंगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो आप उसको क्या कर लेंगे, 100% उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के फिर डिवाइड करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, 2x to the power 4। जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 to the 4 माइनस x to the power माइनस 4x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 7x क्यूब, यहां से स्टूडेंट माइनस 15x स्क्वायर, यहां पर दोनों प्लेसेस पे जीरो है मींस माइनस 14x एज इट इज एंड प्लस 30 एज इट इज। नाउ व्हाट विल बी द क्वोशिएंट इन नेक्स्ट स्टेप? और क्वोशिएंट इज 7x क्यूब, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर स्क्वायर विल गेट, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी तो 3 पावर में 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो 1 पावर बचेगी 7x। पॉजिटिव बचा है स्टूडेंट्स मींस प्लस 7x। 7x को मल्टीप्लाई कीजिए, 7x क्यूब, 7x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14x क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस 14x। स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड प्लस माइनस दीज आल्सो कैंसिल आउट। तो यहाँ इसके देखिए कुछ नहीं स्टूडेंट्स, 15x स्क्वायर एंड यहाँ पर जीरो आएगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस 30। अब स्टूडेंट्स आप फिर से देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या होगा, इन दिस स्टेप आवर क्वेश्चन विल बी 15 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, नॉट सॉरी स्टूडेंट्स माइनस 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 15x स्क्वायर एंड प्लस 30, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस दोनों कैंसिल और जीरो, तो रिमाइंडर आपका जीरो आता है हमेशा, रिमाइंडर जीरो। आप हमेशा सोचते रहिए रिमाइंडर जीरो क्यों आता है, बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है मतलब 100% डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा। सो आवर पॉलिनोमियल इज fx, तो जो आपके रिमेनिंग टू जीरो है, रिमेनिंग टू जीरो आर गिवन बाय fx। सो दस fx इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 2 fx, इसको इससे डिवाइड करने पर fx क्या आ गया स्टूडेंट्स,
10 fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। यहाँ से आपके बाकी दो बचे हुए जीरो निकलेंगे। बाकी दो बचे हुए जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो 15 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 30। अब 30 को इस प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग के हमको 7 मिल जाए। ठीक है, 30 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, 30 के फैक्टर। अब इस तरह से आगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमको 7 मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इजीली 10 और 3 10 3 क्या होता है स्टूडेंट्स 30 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15। तो 2x स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इस ग्रुप में क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5। सो स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ये fx आ गया स्टूडेंट्स। अब दो जीरोस निकालने हैं, तो दो जीरोस कैसे निकलेंगे, जब हम ये fx इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मैं इसको अरेंज करके आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो रिमेनिंग 2 zeros of px are given by, कहां से आएंगे स्टूडेंट, जो बचा हुआ फैक्टर है, बचे हुए जो दो फैक्टर है वो गामा और डेल्टा fx में है। तो fx इक्वल्स टू 0 करने से आएगा, यानी fx इक्वल्स टू 0, यानी 2x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट से दोनों अगर अलग जीरो हो जाएंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 एंड यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5। तो दो जीरो स्टूडेंट्स आपके ये निकल करके आ गए, एक ये और एक ये। अब बाकी दो तो पहले से ही गिवन थे। तो स्टूडेंट्स आप नीचे लिख देंगे ऑल जीरोस ये तो fx के जीरो है ना स्टूडेंट्स, fx उसका पार्ट था px का एक फैक्टर था। तो fx के दो जीरो निकले, यानी px के बाकी दोनों जीरो भी निकल आए। सो ऑल जीरोस स्टूडेंट्स का होंगे √2 माइनस √2, ये तो px के दोनों जीरो पहले से थे और दो बाकी निकल आए 3/2 एंड माइनस 5। तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब और इसके बाद एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर स्टूडेंट सेम है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन। स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। So students, question is of a great length. So I have already solved some portion of it. So let us see. Let us read the question. What is difference between previous question and this question? Find out other zeros of polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x minus 35. If students, we have to find the other zeros of this polynomial if two of its zeros are। स्टूडेंट्स देखिए 2 zeros लिखने के लिए 2 zeros लिखने का स्टाइल क्या है। इसमें लिखा स्टूडेंट्स 2 प्लस माइनस √3। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेते हैं कि एक √2 है और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना। 1 0 इज 2 एंड स्टूडेंट्स, लेकिन आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। यहाँ पर दो जीरो कंबाइन किए गए। कंबाइन किए गए मतलब एक जीरो अगर अल्फा सपोज करें तो 2 प्लस √3 है, और दूसरा जीरो अगर बीटा सपोज करें तो 2 माइनस √3 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस जब कंबाइन करके जीरोस लिखे हो तो आपको दोनों को अलग अलग कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान में रखेंगे। आइए बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीरो आर गिवन पॉलिनोमियल, तो दिस इज गिवन पॉलिनोमियल एज इट इज। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया। इफ हियर अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस √3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस √3, और बाकी दोनों जीरो स्टूडेंट्स हमको पता नहीं है। तो बाकी दोनों जीरो पता नहीं है, मींस गामा एंड डेल्टा आर अननोन। स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जब भी हम इन चारों पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो एक साथ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आता ही आता है। आपने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब
दिस प्लस दिस, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 2 माइनस √3। स्टूडेंट्स a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी कौन सा बन गया स्टूडेंट्स a प्लस b एंड a माइनस b, तो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया स्टूडेंट्स 1, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल हैज 4 जीरोस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन पॉलिनोमियल विल हैव 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। 2 जीरोस आर गिवन, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस 2, इन दोनों को हमने सपोज किया है अल्फा बीटा सपोज किया, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ से इक्वेशन 2 से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, तो ये कितना आ गया 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम fx निकालना है तो क्या करेंगे, fx निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, fx इक्वल्स टू px डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं फिर से हम लोग उसी नोट पर आप पहुंचे हैं जहां पर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पड़ता है। बट स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज आर स्टेप्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा आपको आसान होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोग, आप लोग जैसा जानते हैं हम लोग उसी मोड पर आ चुके हैं जिस मोड पर हमें बहुत अच्छे से डिवीजन परफॉर्म करना होता है। अच्छे से डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आइए हम लोग px को इससे डिवाइड करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड दिस डिवाइड्स x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का 4th डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो दिमाग में एक आइडिया रहता है डर वाला, वो पूरी तरह से गायब हो चुका होगा। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके लिए एकदम बिल्कुल एकदम हवा की तरह सिंपल लगेंगे लोग ये क्वेश्चन। अब आपके लिए 4th डिग्री पॉलिनोमियल डिवीजन कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा। अगर मैटर हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के फिर से वीडियो देखिए। आइए डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्वोशिएंट कितना होगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, 2 पावर कैंसिल, x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, x टू द पावर 4, x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो स्टूडेंट्स प्लस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, इसमें कौन बड़ा है स्टूडेंट, नेगेटिव वाला बड़ा है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, माइनस 2x क्यूब, इसमें स्टूडेंट्स दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, इनके नीचे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएंगे प्लस 138x एंड माइनस 35। नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 2x क्यूब, इसको स्टूडेंट्स आपको अलग रखना है, ऊपर ही रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है। 2x का मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2x का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x का माइनस 4x में मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 2x का प्लस 1 में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2x, स्टूडेंट्स इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो प्लस माइनस एंड दिस वन इज प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है स्टूडेंट 35, तो 35 एक्स स्क्वायर और वो भी स्टूडेंट्स माइनस का, यहाँ पर देखिए दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 140x एंड माइनस 35। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यू कैन सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वोशिएंट, नेक्स्ट क्वोशिएंट विल बी माइनस 35, माइनस 35 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू 4,
स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 140x माइनस 35 प्लस 1 तो माइनस 35। स्टूडेंट्स यू कैन सी प्लस माइनस प्लस, दिस कैंसिल, दिस वन कैंसिल एंड रिमाइंडर इज 0। स्टूडेंट्स अगर आप px को इससे डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है, यानी इतना आ रहा है, यानी fx क्या होगा स्टूडेंट्स, और 10 fx इक्वल्स टू हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता ही है हमारे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपको सब ये कैलकुलेशन कर लेना है, सेकेंड पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस रहना है, यहाँ पर करना है, थर्ड स्टेप में आपको डिवाइड करना है, फोर्थ स्टेप में आपको 0 निकालना है। स्टूडेंट्स 4 मार्क्स आपको अगर चाहिए तो 4 मार्क्स के लिए आपको 4 प्रॉपर स्टेप फॉलो करने होंगे, और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि स्टूडेंट्स विदिन 5 मिनट से क्वेश्चन आपसे पूरा सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स। 35 को ब्रेक कर दीजिए 2 पार्ट में, तो 7 और 5 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप, x कॉमन है, x माइनस 7। इन सेकेंड ग्रुप स्टूडेंट 5 कॉमन है, तो x माइनस 7 एंड x प्लस 5। तो स्टूडेंट fx से आ गया, और इसी fx से हमारे 2 0 निकलने हैं, है ना। fx हमने किसकी जगह लिखा था, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी की जगह हमने fx लिखा था, तो fx से 2 0 निकलेंगे, बाकी 2 0 निकलेंगे। वैसे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, तो मैं निकाल के यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर 2 zeros of px are given by, कहां से आएंगे स्टूडेंट्स, fx इक्वल्स टू 0 से, यानी x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी स्टूडेंट्स x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 7 and x equals to minus 5. So these are 4 values. 2 values are already given and we have find other 2 values of x. x की हमने other 2 values निकाल दी हैं जो स्टूडेंट्स 0 है। All zeros are 2 plus root 3, 2 minus root 3 and 7 and माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करते हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज प्रैक्टिस इन मैथ इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। स्टूडेंट्स आपको ये मंत्र अपने दिमाग में बैठा लेना है। जिस दिन आपने ये मंत्र दिमाग में बैठा लिया, आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस इन मैथ्स इज योर स्ट्रॉन्ग पावर। If you are practicing same type of question or same question, you can practice at least many times, or same type of question you can do 2 times, 3 times, 4 times. And students आपके लिए तो फायदे की बात है, हमेशा वीडियोस ये आपकी यूट्यूब में रहेंगे, आप कभी भी देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट स्टूडेंट आप सिर्फ देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको लिखना होगा। If you are writing in your copies, then and only then your practice is fruitful and it will benefit you in your exams. Not only in exams, everywhere in students, if you face competitive exams, your concept is clear and easily you can find this type of questions. So the polynomial is, let px equals to 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x and minus 5. This is your polynomial, students, and its 2 zeros are root 5 by 3, root minus root 5 by 3.
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई अलर्ट मोड पे रखना है आपको। हाई अलर्ट मोड पे क्यों रखना है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन में नहीं आता था। इस बार क्या है, जीरो जाके फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए हैं। रूट भी है, फ्रैक्शन भी है, रूट टुगेदर विद फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखना है तो कैसे इजीली इट्स टू जीरोस आर अल्फा इक्वल्स टू ले लेते हैं स्टूडेंट्स 5/3 एंड बीटा इक्वल्स टू रूट माइनस 5/3। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन होगा। अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा स्टूडेंट्स 5/3 प्लस और माइनस है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रूट 5/3 यानी इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, दोनों जीरोस का सम जो आ गया वो 0 आ गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स रूट 5/3 इंटू माइनस रूट 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख पा रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा और माइनस 5/3 बचेगा। तो ये दोनों वैल्यूज का यूज आपको आगे करना है जो कि आप जानते हो। 1 आप इसको 1 ले लेते हैं, ये दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले बहुत आसानी से कर लेंगे, इट इज टू इजी। अब इफ अल्फा पॉलिनोमियल हैज 4 zeros, so if alpha, beta, gamma and delta are zeros of px, ठीक है, then how we can write px? Px can be written as x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and x minus delta। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमको दो जीरोस पता है, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों जीरोस का आ गया। और ये स्टूडेंट्स इन दोनों के बारे में, ये दोनों अननोन है, तो मान लीजिए ये दोनों जीरोस किससे निकलेंगे, एफ से निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस 5/3। सो स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 5/3। अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 5/3 इंटू एफ। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब स्टूडेंट्स अगर आप 5/3 रखे रहते हैं तो आपको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होगा, तो हम यही बार एलसीएम ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होगा, यह जाएगा 3 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एफ। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक चैलेंजिंग काम है कि आप पीछे वाले क्वेश्चन से इसको कैसे अलग रखेंगे, और थोड़ा सा इस तीन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, दिस थ्री हैज नथिंग इंपॉर्टेंट रोल, बट आपको क्या करना होगा, अब आपको एफ निकालना है तो कैसे निकलेगा, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 3 को कुछ नहीं करना, 3 को उसी तरह रखे रहना है। आपको सिर्फ इस px को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, px को डिवाइड कर लेंगे, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग उसी मोड पर पहुंच गए हैं जिस पर हमको बार बार डिवाइड करना पड़ता है। आइए एक बार अच्छे से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो आपका फोर्थ डिग्री अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। So let us divide by long division method.
सो स्टूडेंट 3x² माइनस 5 और ये क्या है स्टूडेंट 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, ओनली x² का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3x⁴ x² का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 5x², सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट, 6x³ के नीचे कुछ नहीं है, 6x³ पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस 3x² स्टूडेंट्स माइनस 10x एंड माइनस 5। अब आप इसको फिर से डिवाइड करके देख लीजिए कितने टाइम्स जाएगा स्टूडेंट, 2 टाइम्स 2 और x, एक पावर कैंसिल होगी एक पावर कैंसिल होगी और 2 टाइम्स जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 2 3 जा 6x³, 2x का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 10x, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस प्लस, ये कैंसिल और स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका काम आसान हो गया। तो 3x² माइनस 5 बचेगा। अब फिर से स्टूडेंट देख लीजिए पूरा पूरा वही लिखा हुआ है, 1 टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, तो 3x² माइनस 5 स्टूडेंट्स क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट fx क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 4 fx इज गिवन, fx इक्वल्स टू हो जाएगा, डिवाइड करने पर कितना आया है स्टूडेंट्स 3, इसी तरह से रहेगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर आप बहुत आसानी से, बहुत आसान फैक्टर है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट से, तो 3 इंटू x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब px के 2 जीरोस कहां से, 2 जीरोस तो पता ही थे, 2 जीरोस कहां से निकलते थे भाई, देखिए स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, नई चीजें सीखिए, px के 2 फैक्टर यहाँ है और 2 फैक्टर कहां पर है, यहाँ पर है, तो अब fx की वैल्यू कितनी आ चुकी है इतनी, तो fx के जो जीरो होंगे वही px के बचे हुए 2 जीरो होंगे, तो आइए उनको भी निकाल लेते हैं। रिमेनिंग टू zeros of px will be given by fx equals to 0। यानी स्टूडेंट्स इस 3 का देखिए कोई रोल नहीं है, x² प्लस x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज अगेन x इक्वल्स टू -1, यानी ये 2 जीरो निकल आए और ये 2 जीरो क्या है स्टूडेंट्स सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक वाले में। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, all zeros of px are स्टूडेंट्स क्या है 5/3 और ये भी दोनों प्लस माइनस में, और ये -1 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट, दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको तीन क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपका दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली यू कैन सॉल्व, इजीली यू कैन हैंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू। मैं आपको 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और उन क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे।